Hi students, welcome to the lecture of the topic trigonometric equation, lecture number 3, and in this lecture we are going to solve the important problems. In first two lectures we have seen some problems of the topic trigonometric equation, and in lecture number 2 we have solved the problems of the number of solutions, sum of solutions, and in this lecture we will solve the problems. Continue to the problem number 8. सो दिस इज माय प्रॉब्लम नंबर 8. पहले सेकंड लेक्चर में हमने 7 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं. सो दिस इज प्रॉब्लम नंबर 8. सम ऑफ ऑल द सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन इन द इंटरवल 0 to pi is k pi, and I have to find the value of k. So I will solve this equation, and my given equation is 8 cos of x into cos of pi by 6 plus x into cos of pi by 6 minus x minus 1 by 2 इक्वल टू 1. तो इसके लिए मैं ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फॉर्मूले यूज करूंगा और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट भी मैंने आपको बोले हैं इन द लेक्चर्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री. सी दीज रिजल्ट्स. साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी and also equal to cos square a cos square b cos square b minus cos square. And again I have second standard result, that is cos of a plus b into cos of a minus b क्या होता है? cos square a minus sin square b या होता है cos square b minus sin square a. तो देखिए ब्रैकेट में ये जो टर्म मुझे दिखाई दे रही है cos of pi by 6 plus x into cos of pi by 6 minus x, यानी ये टर्म इस फॉर्म में है cos of a plus b into cos of a minus b, और उसके लिए मैं फॉर्मूला यूज करूंगा cos square a minus sin square b. So using that result I will have cos square of pi by 6 minus sin square of x minus 1 by 2 इक्वल टू 1. समझ में आ रहा है? cos of a plus b into cos of a minus b is cos square a minus sin square b. So now I will put the value of cos of pi by 6 cos 30 root 3 by 4, उसका स्क्वायर हो जाएगा 3 by 4 माइनस साइन स्क्वायर x माइनस 1 by 2 इक्वल टू 1. ओके, cos 30 root 3 by 2 उसका स्क्वायर 3 by 4. So this is equal to 8 cos x 3 by 4 minus 1 by 2. So it will be 1 by 4 minus sin square x equal to 1. So multiplying by 8 cos x to this bracket, I will have 2 cos x minus 8 cos x into sin square x is 1 minus cos square x equal to 1. And this becomes 2 cos x minus 8 cos x plus 8 cos x into cos square x cos cube x equal to 1. And now this equation is 8 cos cube x minus 6 cos x equal to 1. अब यहाँ से मुझे cos of 3 थीटा का जो फॉर्मूला है उसका डबल दिखाई दे रहा है.
ट्रिपल एंगल कॉस ऑफ 3 थीटा क्या होता है? 4 कॉस क्यूब थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो यहाँ से मुझे ये समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos एक्स का आने के लिए I will divide this equation by 2. So 4 cos cube x minus 3 cos x will be equal to 1 by 2. So 4 cos cube theta minus 3 cos theta is cos of 3 theta. तो इस तरह से ये टर्म बन गई cos of 3x equal to 1 by 2. So I have solved this equation using these results. These results are very important. So please note these 4 results, very important results. अब देखिए मुझे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है इन द इंटरवल 0 to पाई। तो मेरा x है इन द इंटरवल 0 to पाई, but here is my angle is 3x. Therefore, I will find 3x in the interval 0 to 3 पाई। तो पहले मैं 3x फाइंड आउट करूँगा। ऐसा 3x cos का मुझे चाहिए कि उसकी वैल्यू 1/2 हो। तो पहले 0 to 2 पाई में 1/2 कहाँ पे होता है? cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। तो π/3 फोर्थ क्वाड्रेंट का सॉल्यूशन 2 पाई माइनस π/3 cos इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट का थीटा, फोर्थ का 2 पाई माइनस थीटा, ये 2 पाई माइनस थीटा। तो यहाँ 2 पाई तक आ गया मैं। अब 2 पाई से मुझे जाना है 3 पाई तक, तो फिर से मुझे फर्स्ट क्वाड्रेंट लगेगा। तो फिर से 2 पाई प्लस थीटा, सो 2 पाई प्लस थीटा यानी 2 पाई प्लस π/3. So like this I have the value of 3x as π/3, 6 pi minus pi, 5 π/3 and 6 pi plus pi, 7 π/3. But I have to find x. So x will be equal to π/9, π/9, 5 π/9 and 7 π/9. Now in the question I have asked the sum of all the solutions. ये सभी सॉल्यूशन की मुझे सम पूछी है। So sum of these angles is π/9 plus 5 π/9 plus 7 π/9. So it is 13 π/9 and this sum is given in the question as k pi. So what this is equal to k pi, तो मेरा k आ गया 13/9. So value of k is 13/9. Hence option C is correct. Now see the next question, question number 9. The most general solution of this equation, 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x equal to 2 to the power 1 minus 1 by root 2. So for this question I have the concept that am is greater than or equal to gm. तो 2 to the power sin x और 2 to the power cos x का am क्या होगा? 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x अपॉन 2, और इसका gm ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा? रूट ऑफ बी सी। am क्या होता है? a प्लस b/2। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है? रूट ऑफ ए बी। ए बी सी अगर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में है तो इन दोनों टर्म का रूट, that is 2 to the power sin x
into 2 to the power cos x. So from this equation I can write 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x is greater than equal to 2 into root of 2 to the power sin x plus cos x. So 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x is greater than or equal to 2 into root of 2 to the power sin x plus cos x. So I have to put the minimum value of sin x plus cos x. So sin x plus cos x has maximum value root 2 and minimum value minus root 2. So sin x plus cos x less than or equal to root 2 greater than or equal to minus root 2. So minimum value of sin x plus cos x is minus root 2. तो यहाँ से मेरा इक्वेशन बनेगा 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x equal to 2 to the 2 into root of 2 to the power minus root 2. अब देखिए यहाँ से इक्वेशन 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x is greater than equal to 2 into, अब ये 2 to the power minus root 2 का पावर हो गया 1/2. अब देखिए ये बनेगा 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x is greater than equal to 2 into 2 to the power minus 1 by root 2. So given equation is 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x is greater than equal to 2 to the power 1 minus 1 by root 2. तो यहाँ तक मैं आ गया हूँ. So by the condition am is greater than equal to gm, I have this in equation, but the given equation is 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x equal to 2 to the power 1 minus 1 by root 2. But given equation is 2 to the power sin x plus 2 to the power cos x is equal to 2 to the power 1 minus 1 by root. तो 2 to the power cos x plus 2 to the power sin greater than or equal to, तो given equation में equal to है. So this is possible. This is possible. ये कब possible होगा? If both sin x and cos x equal to minus 1 by root 2 करके देखिए लेफ्ट हैंड साइड में 2 to the power sin x की वैल्यू माइनस 1 by root 2 प्लस 2 to the power cos x की वैल्यू माइनस 1 by root 2. तो ये 2 times 2 to the power minus 1 by root 2, तो ये 2 to the power 1 minus 1 by root 2. तो ये दोनों sin x cos x जब माइनस 1 by root 2 होंगे तभी ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगा. सो इसका मुझे सॉल्यूशन चाहिए, मोस्ट जनरल सॉल्यूशन. तो sin x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 2 cos x भी है माइनस 1 बाय रूट 2. तो इसका जनरल सॉल्यूशन होगा 2n पाई प्लस अल्फा, क्योंकि sin x और cos x का पीरियड 2 पाई का होता है. तो 2n पाई प्लस अल्फा, लेकिन अल्फा मुझे ऐसा चाहिए जिससे दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो. सो बोथ sin x एंड cos x आर नेगेटिव, बोथ sin x एंड cos x आर नेगेटिव. तो दोनों sin x और cos x कहाँ नेगेटिव होंगे? थर्ड क्वाड्रेंट में. सो अल्फा इज, थर्ड क्वाड्रेंट वाला अल्फा मुझे फाइंड आउट करने का है. आई हैव टू फाइंड द अल्फा इन थर्ड क्वाड्रेंट. I have to find the alpha in third quadrant. Okay, here is some problem. I have to find the alpha in third quadrant.
तो थर्ड क्वाड्रेंट वाला अल्फा पाई प्लस पाई बाय 4 पाई बाय 4, therefore x will be 2n pi plus 5 pi. So this is the general solution of this equation, 2n pi plus pi by 4, 2n pi plus 5 pi by 4. So this was the question number 9. See the next question number 10. And in this question I have to find the number of solutions of this equation in the interval 0 to pi by 2. तो मेरा इक्वेशन क्या है? Given equation is sec square theta plus cosec square theta plus 2 cosec square theta equal to 8. तो इसको मैं sin cos में कन्वर्ट करता हूँ, 1 by cos square theta plus 1 by sin square theta plus 2 by sin square theta equal to 8. And this equation is 1 by क्रॉस मल्टीप्लाई करो, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 1 बाय साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 बाय साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8. सो यहाँ से टेकिंग एलसीएम आई विल गेट 1 प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 8 sin square theta into cos square theta. So I will change this equation in terms of sin or in terms of cos. So 1 plus 2 cos square theta equal to 8 cos square theta, and this sin square theta is 1 minus cos square theta. So it is 1 plus 2 cos square theta equal to 8 cos square theta minus 8 cos theta raised to 4. ओके, तो यहाँ से पावर 4 में इक्वेशन मिलेगा 8 cos theta to the power 4 minus 6 cos square theta plus 1 equal to 0. तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व होगा. 8 cos theta to the power 4 product 8, so minus 4 cos square theta minus 2 cos square theta plus 1 equal to 0. So taking 4 cos square theta कॉमन, तो यहाँ से मुझे मिलेगा 2 cos square theta minus 1 कॉमन, 2 cos square theta minus 1 equal to 0. So again I will take 2 cos square theta minus 1 common. So I will get 4 cos square theta minus 1 equal to 0. तो यहाँ से मुझे cos square theta मिलेगा 1/2 और यहाँ से cos square theta मिलेगा 1/4. And from this I will get cos of theta equal to plus minus 1/√2 और यहाँ से cos थीटा मिलेगा प्लस माइनस 1/2. अब देखिए इंटरवल क्या दिए हैं क्वेश्चन में, 0 to π/2, 0 to π/2 यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट. 0 to π/2 means first quadrant, so I have to consider only positive value. So I have to consider cos theta equal to 1/√2. सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करने की है. तो एक सॉल्यूशन मिलेगा π/4 और दूसरा सॉल्यूशन मिलेगा π/3.
because given interval is only 0 to pi by 2. So in first quadrant, there will be only two solutions. So number of solutions to this are 2. So 2 is the correct answer. So last one is correct. This is question number 10. See the next क्वेश्चन नंबर 11. नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं इस इक्वेशन के. इंटरवल दिया है 0 to 2 pi. cos of 6x plus tan square x plus cos of 6x इंटू tan square x इक्वल टू 1. तो देखिए स्टूडेंट, जब भी इक्वेशन में tan दिखाई देता है तो इस tan से थोड़ा बच के रहिए, क्योंकि ये tan हमें बहुत धोखा देता है. नंबर ऑफ सॉल्यूशन में ये tan हमें बहुत धोखा देता है. tan इज नॉट डिफाइंड एट ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. तो ऐसे सॉल्यूशन हमें कंसीडर नहीं करने के हैं. अगर सॉल्यूशन में पाई बाय 2 आता है, 3 पाई बाय 2 आता है, 5 पाई बाय 2 आता है, 7 पाई बाय 2 आता है, तो ऐसे सॉल्यूशन हमें काउंट नहीं करने के हैं, बिकॉज tan इज नॉट डिफाइंड फॉर ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2. ओके, तो पहले से बात आपके ध्यान में आनी चाहिए. अब देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे. सो आई विल टेक cos ऑफ 6x कॉमन फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड टर्म. ये देखिए यहाँ से मेरा cos 6x कॉमन निकलता है, तो ये बन गया 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1. ए प्लस tan स्क्वायर एक्स, राइट साइड में जाके माइनस tan स्क्वायर एक्स हो जाएगा. अब ये बनेगा cos ऑफ 6x इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स. सो स्टूडेंट्स, फॉर्मूले आपको याद ही है ट्रिग्नोमेट्री के, बोलो फटाफट. 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, cos ऑफ 2 थीटा. cos 2 थीटा के 4 फॉर्मूले इसमें 4 नंबर का है. cos ऑफ 2 थीटा यानी cos ऑफ 2x. ओके, दिस इज द फॉर्मूला ऑफ cos ऑफ 2x. अब ये सिंपल हो गया, अब इसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो cos ऑफ 6x माइनस cos ऑफ 2x इक्वल टू 0. तो ये बन गया मेरा cos c माइनस cos d. तो यहाँ फैक्टराइजेशन अप्लाई करेंगे 2 साइन c प्लस डी बाई 2, तो ये हो जाएगा 4x इंटू साइन d माइनस सी बाई 2, या c माइनस डी बाई 2 करेंगे तो ये माइनस आ जाएगा. तो माइनस से तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि माइनस इधर जाके जो राइट साइड में तो 0 है, तो ये बनेगा 2x इक्वल टू 0. ओके, अब या तो एक तो साइन ऑफ 4x 0 होगा, या फिर साइन ऑफ 2x 0 होगा. तो साइन थीटा इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या है? थीटा इक्वल टू n पाई. अब इसमें मैं 4x इक्वल टू n पाई लिखूंगा. साइन कहाँ पे 0 होता है? n पाई पे. और ये x बन गया मेरा n पाई बाय 4. ओके, अब मैं यहाँ से n सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा और x लिखते जाऊंगा n0. तो x बनेगा 0. पहले इंटरवल देखिए, ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल क्या है? क्लोज इंटरवल है. 0 के साइड में कोई डरने की बात नहीं है, 0 सॉल्यूशन है. n इक्वल टू 1 लिया तो x कितना मिलेगा? पाई बाय 4. n इक्वल टू 2, आंसर क्या मिलेगा? पाई बाय 2. ओके, n इक्वल टू 3, तो आंसर क्या मिलेगा? 3 पाई बाय 4. अब n इक्वल टू 4, तो x क्या मिलेगा? पाई.
अब n इक्वल टू 5, तो x क्या मिलेगा 5 पाई/4, n इक्वल टू 6, तो आंसर क्या मिलेगा 7 पाई/4 इज लेस देन 2 पाई, n इक्वल टू 6, सॉरी n इक्वल टू 6, ये गलत हो गया बच्चों, दिस इज रॉन्ग। n इक्वल टू 6 से हमें मिलेगा 3 पाई/2। अब n इक्वल टू पहले 6 के बाद क्या सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा 7, तो 7 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये बनेगा 7 पाई/4 और n इक्वल टू 8 से 2 पाई। ओके, तो पहले ही मैंने बोला था कि इसमें और मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 के सॉल्यूशन हमें नहीं लेने के हैं, तो हमें इसको कैंसल करना पड़ेगा। दिस इज नॉट पॉसिबल, ये सॉल्यूशन से इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि tan इज नॉट डिफाइंड, तो LHS RHS सेटिस्फाई नहीं होंगे। ओके, अब ये बचा है 2 पाई, तो यहाँ से यही सॉल्यूशन मिलेंगे, फिर भी एक बार चेक कर लेंगे। तो ये यहाँ से भी मुझे 2x इक्वल टू n पाई मिलेगा और x इक्वल टू n पाई/2 मिलेगा, तो x क्या मिलेगा 0, 1 रखेंगे तो पाई/2, 2 रखेंगे तो पाई, 3 रखेंगे तो 3 पाई/2, 4 रखेंगे तो 2 पाई, तो ये पाई/2, ये पाई/2 कैंसल, 3 पाई/2 भी कैंसल, 0 पाई 2 पाई इसमें ऑलरेडी आ चुके हैं, 0 पाई 2 पाई ऑलरेडी आ चुके हैं, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस क्या क्या सॉल्यूशन है, 0 है, पाई/4 है, 3 पाई/4, पाई, 5 पाई/4, 7 पाई/4 और 2 पाई। करो काउंट, 1 2 3 4 5 6 7, so number of solutions to this equation are 7। so students, जब भी इक्वेशन में tan होता है तो और मल्टीपल्स ऑफ पाई/2 वाले सॉल्यूशन हमें काउंट नहीं करने के हैं, उसको कंसीडर नहीं करने का है, ये बात आपको ध्यान में रखनी की है। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 11। सी द क्वेश्चन नंबर 12। If n1 denotes the maximum number of roots of the equation sin theta equal to k in the interval 0 to 2 pi, sin theta equal to k के 0 to 2 pi में n1 maximum number of roots है and n2 denotes the maximum number of roots of the equation cos theta equal to k2, ये k1 होगा, ये k2 in the same interval, तो n1 plus n2 पूछा है। तो 0 to 2 पाई में साइन थीटा कितनी बार वैल्यू रिपीट करता है मैक्सिमम, और कॉस थीटा इक्वल टू k2, इसके मतलब कॉस थीटा के 0 to 2 पाई में कितनी बार वैल्यू रिपीट होती है, तो वो हमें देखने का है। तो उसके लिए सिंपल हम तो वैसे भी चेक कर सकते हैं। देखिए साइन 0 to 2 पाई में 0 को ही रिपीट होता है, देखिए साइन 0 इज 0, साइन पाई इज 0, साइन 2 पाई इज 0, तो 0 to 2 पाई में मैक्सिमम बार 0 आंसर आता है एट 0 पाई एंड 2 पाई। सो हियर नंबर ऑफ मैक्सिमम रूट्स आर 3, सो n1 इक्वल टू 3। अब कॉस का देखिए, कॉस का देखिए कितनी बार वैल्यू रिपीट होता है, कॉस ऑफ कॉस 0 कितना होगा 1, तो कॉस 2 पाई को ही 1 आएगा, तो cos of 0 is 1, cos of पाई/2 0 होगा, cos of पाई -1 होगा, cos of 3 पाई/2 0 होगा, cos of 2 पाई is 1, तो cos 2 ही बार वैल्यू रिपीट करता है,
1 वो 0 पे और 2 पाई पे। तो यहाँ से मेरा n2 कितना होगा 2। सो यहाँ से मुझे n1 प्लस n2 3 प्लस 2 कितना मिलेगा 5। अगर कंफ्यूजन है तो ग्राफिकली आप चेक कर सकते हो। ये देखिए मेरा साइन 0 π/2 पाई 3π/2 ये मेरा 2 पाई 0 to 2 पाई में मैं साइन एक्स देख रहा हूँ। साइन ऑफ π/2 1 साइन ऑफ पाई 0 ये मेरा +1 ये मेरा -1 साइन ऑफ 3π/2 -1 साइन ऑफ 2 पाई 0। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू है, देखिए 0 पाई 2 पाई। तो साइन ऑफ 0 इज 0 साइन ऑफ पाई 0 साइन ऑफ 2 पाई 0। तो ये जो ग्राफ है साइन एक्स का, यहाँ से मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स कि जहाँ वैल्यू रिपीट होती है वो है 0 पाई 2 पाई। तो यहाँ से मेरा n1 कितना मिला 3। अब cos x देखेंगे, cos x तो देखिए cos x तो ये मेरा xy एक्सिस ओके 0 π/2 पाई 3π/2 2 पाई ये मेरा +1 ये मेरा -1 cos of 0 is 1 cos of π/2 is 0 cos of pi -1 cos of 3π/2 0 and cos of 2 pi is 1। तो देखिए यहाँ पे 1 आंसर आता है, यहाँ पे भी 1 आंसर आता है। कौन से एंगल पे आता है वो 0 पे और 2 पाई पे। यहाँ पे भी आता है cos of π/2 is 0 cos of 3π/2 is also 0। तो 2 ही बार आता है। बाकी वैल्यू आप इसको हॉरिजॉन्टल लाइन मार के देखिए, ऊपर भी और नीचे भी 2 ही बार इंटरसेक्ट होगी। सो 2 ही बार इंटरसेक्ट होगी, एक्स एक्सिस को ही 2 ही बार इंटरसेक्ट हो रहा है, यानी इसका n2 कितना बना 2। तो इसलिए मेरा आंसर है n1 3 n2 2 n1 प्लस n2 कितना बना 5। ओके so 5 is the correct answer। n1 plus n2 equal to 5। see the next question number 13। total number of solutions to this equation in the interval 0 to 3 pi। तो ये मेरा इक्वेशन है मॉड में cot x इक्वल टू cot x प्लस 1/sin x। ओके तो मॉड में sin x है तो मुझे 2 केसेस कंसिडर करने पड़ेंगे। इफ cot x is greater than 0 cot x अगर greater than 0 है तो mod of cot x is cot x इक्वल टू cot x प्लस 1/sin x। तो यहाँ से मुझे मिलेगा 1/sin x इक्वल टू 0 1/sin x इक्वल टू 0 यानी cosec x 0। दिस इज नॉट पॉसिबल क्योंकि cosec x जो होता है that is greater than or equal to 1 and less than or equal to -1 होता है। 0 पॉसिबल नहीं है। सो cot x ग्रेटर देन 0 ये केस हमें नहीं कंसिडर करते आएंगी। अब सेकंड केस कंसिडर करेंगे इफ cot x इज लेस देन 0 तो मॉड ऑफ cot x क्या मिलेगा माइनस cot x इक्वल टू cot x प्लस 1/sin x। तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगा -2 cot x इक्वल टू 1/sin x -2 cos x by sin x इक्वल टू 1/sin x। sin x कैन नॉट बी इक्वल टू 0। देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे साइन है, sin x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 तो साइन को कैंसिल करो। cos x इक्वल टू क्या होगा -1/2।
अब इसके मुझे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हैं इन द इंटरवल 0 to 3 पाई। इन द इंटरवल देखो इसके सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के हैं इन द इंटरवल 0 to 3 पाई। तो कॉस नेगेटिव कहाँ कहाँ पे होता है? कॉस इज नेगेटिव इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड थर्ड क्वाड्रेंट इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। अब सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा, लेकिन यहाँ पे मैंने जो फर्स्ट केस कंसिडर की थी कॉट एक्स ग्रेटर देन 0, कॉट पॉजिटिव है, तो कॉट पॉजिटिव कहाँ पे होता है? थर्ड क्वाड्रेंट में। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट से मुझे सॉल्यूशन नहीं मिलता है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में अगर कंसिडर करता हूँ तो 1/sin x इक्वल टू 0 होता है, नॉट पॉसिबल होता है, तो यहाँ से सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो मुझे ये क्वाड्रेंट कैंसल करना पड़ेगा। तो 0 to 2 पाई में मुझे एक ही सॉल्यूशन मिलेगा। अब 2 पाई से मुझे जाने का है 3 पाई तक, तो फिर से कॉस नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट, तो यहाँ पे सॉल्यूशन मिलेगा सेकंड क्वाड्रेंट। तो ऐसे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 हो गए। तो यहाँ पे पहला सॉल्यूशन मिलेगा मुझे 0 to 2 पाई में पाई माइनस पाई बाई 3, और यहाँ से सॉल्यूशन मिलेगा मुझे 3 पाई माइनस पाई बाई 3। तो इस तरह से मुझे ये दो ही सॉल्यूशन मिलेंगे, 2 पाई बाई 3 एंड 8 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 and 8. I have to cancel the third quadrant, as in third quadrant cot is पॉजिटिव एंड पॉजिटिव कॉट से मुझे सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, सो ओनली देयर आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आर 2। सो दिस इज द आंसर। गलती से भी आप इसको थर्ड क्वाड्रेंट भी कंसिडर कर लेंगे तो आपका आंसर 3 आ जाएगा, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 3 बनेगा। लेकिन आपने पहले ही थर्ड क्वाड्रेंट वाला केस लेके 1/sin x इक्वल टू 0 आता है, तो ये आपके बात समझ में आनी चाहिए। दिस रिक्वायर्ड प्रैक्टिस, नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स ज़्यादा सॉल्व करो, यू विल ऑल्सो गेट द आइडिया ऑफ this type of question. See the next question number 14. Okay, number of possible integral values of p so that this equation have a real solution. तो ये quadratic equation है 2 cos square x minus p plus 3 into cos x plus 2 into p minus 1 equal to 0। तो ऐसे पॉसिबल इंटीग्रल वैल्यूज p के कितने होंगे जिससे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सॉल्यूशन मिलेंगे, सॉल्यूशंस रियल होंगे। तो इसको मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज करता हूँ, cos x इक्वल टू माइनस बी से मिलेगा p प्लस 3 माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर मिलेगा मुझे माइनस पी प्लस 3 का होल स्क्वायर या p प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 4a और ये सी 2 इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2a 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 2a, तो ये 2 2 क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, तो ये बनेगा p प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ, तो ये बनेगा पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 9 माइनस 16p माइनस माइनस प्लस 16 अपॉन में कितना आएगा 4। ओके, आगे देखते हैं क्या होता है। p प्लस 3 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ p स्क्वायर माइनस 10p प्लस 25/4। ओके, तो ये बनेगा p प्लस 3 प्लस माइनस, तो ये p माइनस 5 का होल स्क्वायर है, तो यहाँ पे आएगा p माइनस 5
अपॉन 4। अब देखिए कॉसेक्स ये दो वैल्यूज मिलेंगे। अगर मैं प्लस साइन कंसीडर करता हूँ तो ये बनेगा 2p। 2p प्लस साइन कंसीडर करता हूँ तो p प्लस p 2p और 3 - 5 - 2/4। तो यहाँ से मुझे मिलेगा p-1/। अगर मैं माइनस साइन कंसिडर करता हूँ तो पी कैंसिल हो जाएगा। 3 + 5 8/4 से मुझे 2 मिलेगा। तो cos कैन नॉट बी इक्वल टू 2, ये ग्रेटर देन 1 है। सो ये केस मुझे कंसिडर नहीं करनी है, तो सिर्फ cos इक्वल टू p-1/2। तो अगर cos p-1/2 है तो p-1/2 इज लेस देन और इक्वल टू 1, ग्रेटर देन और इक्वल टू -1। ये बात आपको समझ में आ रही है? अगर मैंने माइनस साइन कंसिडर किया यहाँ पे तो आंसर 2 आ रहा है, दिस इज नॉट पॉसिबल। और प्लस साइन कंसिडर किया है तो p-1/2 एंड दिस वैल्यू ऑफ cos x is in between -1 to 1. So here my p-1 is less than or equal to 2, greater than or equal to -2, and here p is less than or equal to 3, greater than or equal to -1। तो ऐसे p के कितने इंटीग्रल वैल्यूज हो गए -1 to 3 में? तो इंटीजर काउंट करते हैं। -1 0 1 2 3, वो जो इंटरवल में है तो कितने इंटीजर्स हो गए? 5। सो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ p satisfying number of integral values of p satisfying this equation are 5. So 5 is the correct answer. So this was the question number 14 and see the next क्वेश्चन नंबर 15। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस पूछे हैं, इंटरवल है 0 to 8 पाई की। तो देखिए log of tan थीटा टू द बेस 5 है तो अपॉन log 5। log of 4 टू द बेस 5 है तो अपॉन log 5। log of 3 sin थीटा टू द बेस 4 है तो अपॉन log 4। तो ये log 5 log 5 log 4 log 4 कैंसिल। तो अब क्या बचा है? log of tan थीटा इक्वल टू log of 3 sin थीटा। सो यहाँ से tan थीटा विल बी इक्वल टू sin थीटा एंड sin थीटा -3 sin थीटा sin बाय cos इंटू cos थीटा इक्वल टू 0। तो sin थीटा इंटू 1 - 3 cos थीटा इक्वल टू 0। तो यहाँ से मुझे sin थीटा मिलेगा 0 और cos थीटा मिलेगा 1/3। तो मुझे नंबर ऑफ सॉल्यूशंस फाइंड आउट करने के हैं, लेकिन इक्वेशन में लॉग की टर्म्स हैं। sin थीटा अगर 0 है तो ये log 0 हो जाएगा। यहाँ से देखिए log ऑफ 3 sin थीटा, तो sin थीटा अगर 0 है तो log 0 हो जाएगा। sin थीटा इक्वल टू 0 है तो log ऑफ 0 हो जाएगा। तो log 0 इज नॉट डिफाइंड। तो sin थीटा कैन नॉट बी इक्वल टू 0। इसका खेल खत्म। अब देखिए cos थीटा इक्वल टू 1/3, लेकिन यहाँ पे tan log ऑफ tan थीटा है, log ऑफ 3 sin थीटा है। सो log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज, पॉजिटिव नंबर्स। तो log पॉजिटिव नंबर का ही होता है, तो इसका मतलब tan थीटा पॉजिटिव होना चाहिए, sin थीटा भी पॉजिटिव होना चाहिए। सो tan इज पॉजिटिव and sin is positive, cos is also positive, cos is positive in
फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। कॉस कहाँ पे पॉजिटिव होता है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट। लेकिन यहाँ पे टेन भी पॉजिटिव है और साइन भी पॉजिटिव है, तो आई हैव टू कैंसिल आउट दिस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो बचा सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। सो कॉस थीटा इज इन, सो थीटा लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आ रहा है मुझे फोर्थ क्वाड्रेंट क्यों कैंसिल करना पड़ा? क्योंकि ओरिजिनल जो इक्वेशन है उसमें लॉग ऑफ टेन थीटा है, लॉग ऑफ 3 साइन थीटा है, तो निगेटिव वैल्यू का टेन डिफाइन नहीं होता, इसलिए टेन और साइन दोनों पॉजिटिव है। और कॉस भी पॉजिटिव है, कॉस इज पॉजिटिव इन फर्स्ट एंड फोर्थ, बट आई हैव टू कैंसिल फोर्थ बिकॉज इन फोर्थ टेन एंड साइन आर नेगेटिव। तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट ही कंसिडर करने का है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये cos थीटा इक्वल टू 1/3 जो पॉसिबल वैल्यू है, इसके लिए मुझे इंटरवल दिया है 0 to 8 पाई। 0 to 8 पाई, 0 to 8 पाई। अब देखो 0 to 2 पाई में एक राउंड होता है, 0 to 2 पाई का एक राउंड होता है और एक ही सॉल्यूशन मिलता है फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो मुझे इंटरवल दिया है 0 to 8 पाई, वैसे मेरे 4 राउंड होंगे। सो इन 0 to 2 पाई अगर वन सॉल्यूशन है, तो 0 to 8 पाई में 4 राउंड होंगे, 4 राउंड्स। 0 to 2 पाई, 2 पाई to 4 पाई, 4 पाई to 6 पाई, 6 पाई to 8 पाई, 4 राउंड होंगे। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने होंगे? 4। So number of solutions to this equation are 4. Very nice question. So number of solutions to this question are 4. आंसर चेक कर लेते हैं एक बार, and I am right. Number of solutions are 4. So this was the question number 15 and the last is question number 16. फिर से नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, तो पहले हम इसी टाइप के क्वेश्चन ले रहे हैं, नंबर ऑफ सॉल्यूशन, सम ऑफ द सॉल्यूशंस और क्या क्या सॉल्यूशन होते हैं। जनरल सॉल्यूशन के क्वेश्चन भी हम देखेंगे। पहले ये टाइप के क्वेश्चन हम सॉल्व कर लेंगे। तो 2 sin square x प्लस sin square of 2x इक्वल टू 2। सो 2 sin square x, तो ये बन गया 2 sin x इंटू cos x का होल स्क्वायर इक्वल टू 2। तो ये बन गया 2 sin square x प्लस 4 sin square x इंटू cos square x इक्वल टू 2। तो 2 से डिवाइड करता हूँ, sin square x प्लस 2 sin square x cos square x is 1 माइनस sin square x इक्वल टू 1। तो sin square x प्लस 2 sin square x माइनस 2 sin square इंटू sin square फोर्थ पावर आ जाएगा इक्वल टू 1। ओके, तो यहाँ से मुझे इक्वेशन मिलेगा sin square x प्लस 1 मिनट। अब इसको हम इस फोर्थ टर्म वाली फोर्थ पावर की टर्म पहले लिख सकते हैं। तो ये बन गया 2 sin x टू द पावर 4 माइनस 3 sin square x प्लस 1 इक्वल टू 0। ओके, तो यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगा 2 sin x टू द पावर 4 माइनस 2 sin square x माइनस sin square x प्लस 1 इक्वल टू 0। टेकिंग 2 sin square x कॉमन, sin square x माइनस 1 माइनस कॉमन sin square x minus 1 equal to 0. So I have sin square x minus 1 into 2 sin square x minus 1 equal to 0. तो यहाँ से मेरा sin square x 1 बनेगा और यहाँ से sin square x 1/2 बनेगा। अगर क्वेश्चन में साइन ही है, साइन कॉस है, तो डरने की कोई बात नहीं है, ऑलवेज डिफाइन, कभी भी डिफाइन होते हैं। तो x sin x क्या बनेगा? sin x इज प्लस माइनस 1, तो ये पाई/2 ये 1 होगा, -1 कहाँ पे होगा? इंटरवल क्या है? 0 to 2 पाई।
So here sin x is plus minus 1 पाई बाय 2 और 3 पाई बाय 2, ये दो सोल्यूशन मिले। अब यहाँ से sin x इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2, तो 1/√2 के दो सोल्यूशन मिलेंगे। पाई बाय 4 फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, 3 पाई बाय 4 माइनस 1/√2 के दो सोल्यूशन मिलेंगे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट का पाई प्लस पाई बाय 4 5 पाई बाय 4, फोर्थ क्वाड्रेंट का 2 पाई माइनस थीटा 2 पाई माइनस 4 7 पाई बाय 4। Number of solutions are 1 2 3 4 5 6. So number of solutions to this equation are 6. So this was the question number 16, and this was the last problem of this lecture. So up till now हमने 16 प्रॉब्लम सॉल्व किए हैं। देखते रहिए केयरफुली ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर, सभी इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स हम सॉल्व कर रहे हैं। इससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा, फॉर्मूले रिवाइज होंगे और अच्छे कंसेप्चुअल क्वेश्चन लेकर हम आएंगे फिर से लेक्चर नंबर 4 में। सो प्लीज़ स्टूडेंट्स, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं, प्रॉब्लम अच्छे लगते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और press the bell icon to get notified the new lectures. Okay students, bye.